خصوصی خطاب کے لیے جناب انجینئر توفیق اسلم صاحب کو دعوت دیتا ہوں. آپ جو ہے مہاراشٹرا رفا چیمبر آف کامرس کے پیٹرن ہیں اور آپ کا ٹاپک ہے تجارت معیشت کے استحکام کا مؤثر ذریعہ. میں مولانا سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں ہمیں خطاب. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورہ نور کی آیت ہے. یہاں پر ذکر پہلے یہ ہوا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کا نور کیسے ہے، چراغ کیسے ہے، پھر وہ حباب کیسے ہیں اور کیسے زیتون کے تیل سے وہ لگا جو ہے جلایا گیا ہے، کہ ابھی تیل نہیں لگنے سے پہلے وہ نور ہے، نور علی نور. اور کہا کہ یہ نور وہاں ہوتا ہے جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسجدیں، اور وہاں لوگ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ایمان لانے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں. اور بتایا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت جو ہے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، اور نہ اقامت صلاۃ سے، نماز کو قائم کرنے سے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے. اور وہ ڈرتے ہیں اس دن کے لیے جس دن قلوب اور ابصار یعنی آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے. دوسری جگہ اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن. اور جو کوئی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو ایک اچھی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں. ولنجزینہم باحسن ما کانوا یعملون، اور جو اچھے عمل وہ کر رہے ہیں اس کا جو بدلہ اس کو آخرت میں دیں گے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اب دیکھیے ہوا یہ ہمارے پاس کہ جو دین کا تصور ہمارے پاس آیا وہ یہ تھا کہ بہت غربت کا تھا. میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا، ہاتھ وہ گٹھے پڑ گئے تھے، ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، پورا محنت کرتی تھیں اور کھانے کو بالکل نہیں رہتا تھا. پھر کبھی پکتا کھانا کوئی فقیر آتا تو پہلے پورا فقیر ہی کو دے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مہینہ گزر جاتا اور 2 کالی چیزوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہم کو. ایک کھجور تھا اور ایک پانی تھا. لیکن اگر آپ یہ جو ہمارے سامنے آ گیا یہ سب حقیقت ہے، احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم کو. لیکن دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں تھے جن کی دولت کا انداز اگر آپ لگائے تو بل گیٹس کے کئی گنا زیادہ تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشر مبشرہ کہا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کے پاس تو کتنے اونٹ تھے اور کتنا سامان تھا، کروڑ پتی آدمی تھے. اور آج بھی ان کا اکاؤنٹ مکہ میں موجود ہے. انہوں نے کچھ کیا کیا ہے، ایک اکاؤنٹ اپنا رکھ دیا کہ یہ میرا پیسہ ایسا فائدے میں لگایا جائے، یہ میرا کرایہ ہے، یہ ہمیشہ یہ کام میں لگے. تو آج بھی اگر آپ یوٹیوب میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ کھلا ہے. بہت کروڑ پتی آدمی تھے اور بہت پیسہ ان کے پاس تھا. تو پھر وہ نہیں دیتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ دیتے تھے. لیکن یہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ آتے ہی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو عثمان کتنا کما رہے ہیں، تم بھی جا کر کماؤ ان کے جیسا، یا ان سے سیکھو تجارت. اور نہ ان کو سکھایا کہ دیکھو کتنی تنگی چل رہی ہے لوگوں کو، تم ان کا بھی بزنس سکھا دو. اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو اسلام میں دونوں طریقے ہیں. جو زاہد بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، کم میں کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے راہ میں سب کچھ لگانا چاہ رہا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس بہت اونچے درجے رکھتا ہے. اور جو بہت زیادہ کماتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے پاس بڑے درجے. اب اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ نام آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اور جالوت کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملک بھی عطا کیا اور بہت ساری چیزیں ان کو سکھائی.
क्या सिखाई? तो कुरान एक जगह ये कहता है कि हमने उनको लोहे को नरम कर दिया उनके लिए। पहली बार लोहे से कोई जरहें बनी हैं, सामान बना है, तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बना है। और कुरान मजीद में ये भी बताया कि हमने इसको ये भी सिखाया कि जब ये जरहें बनाए तो कड़ियाँ बनाए और कड़ियों के अंदर गैप रख दे। कुरान की आयतें हैं बिल्कुल साफ साफ। और इस तरीके से उनको ये हुआ कि जंगों में वो महफूज होने लगे और जितने बातिल लोग थे उनको दबा दिया उन लोगों ने और बहुत बड़ी हुकूमत उनकी कायम हो गई। उसके बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए और इनका मामला ये था कि एक तरफ तो ये कर रहे थे, लेकिन जो है ज़बूर की तिलावत ऐसी करते आप कि परिंदे आकर पूरे के पूरे सामने बैठ जाते थे। ये भी कुरान मजीद में उनकी तिलावत जो थी अल्लाह की किताब की वो ऐसी थी कि परिंदे, यानी एक तरफ दुनिया में छाए हुए हैं, पूरी ताकत है, और दूसरी तरफ रात भर खड़े रहकर अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह की किताब को भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये दो चीजें होना जरूरी। अगर तिजारत है तो उसके साथ कुरान का इल्म और दीन होना जरूरी है, दीन है तो उसके साथ जो है ये दुनिया की ताकत हासिल करना, बैलेंस में रखना, ये भी जरूरी है। अब इसके बाद जो है ना उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बताया कि उनके लिए भी ये मामला था कि उनके लिए 1 महीने की हवाई दर चलती थी, 1 महीने की हवाई दर चलती थी वो नदियों में। तो उस सामान का तिजारत लेके जाते थे, लाते थे, तो बहुत कामयाब होते थे, बहुत ज्यादा उनके लिए जो है मौके वहां पर फराहम हो चुके थे। इसके बाद उनके बारे में आया है इद उरिदा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बेहतरीन सधाए हुए घोड़े, सीखे हुए घोड़े, कीमती, यानी जैसे अब टैंकर होते हैं और जो मशीन हम मंगा रहे हैं फ्रांस वगैरह से, ऐसे घोड़ों का जो है वैल्यू थी। तो जब ऐसे घोड़े उनके सामने पेश किए गए, फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक तआला ये जो खैर की मोहब्बत है, ये जो दुनिया की मोहब्बत है, मैं सिर्फ तेरे लिए अपने दिल में रखता हूँ, तेरा जिक्र करूँ, तुझे याद रखूँ, तेरे दीन को कायम करूँ, इसीलिए तो मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वरना इन सारी चीजों से मुझे मोहब्बत करने की क्या जरूरत थी। हत्ता तबारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि वो घोड़े उनके सामने से देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। तो उन्होंने कहा रुद्दुहा अलैया, लौटा लाओ उनको लाओ फिर से। फतफीखा मसहम बिस्सौक़ि वल आनाक़, फिर फिराने लगा वो अपने हाथ को उनकी गर्दनों और उनकी टांगों पर। यानी ऐसी चीजों से मोहब्बत करना जो दीन के क़याम के लिए जरूरी है। इक़ामत दीन कैसा होगा बगैर ताकत के? आज दुनिया के अंदर सबकी बड़ी ताकत है, और अगर हमारी ताकत ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो दीन बार बार ये कहता है। बल्कि अगर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही कहा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ ओढ़ लपेट के सोने वाले, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, कि रात को उठो थोड़ी देर के लिए, और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन, या उसको जरा बढ़ा लो, आधी रात, थोड़ी रात, या कम भी करो 1/3 से, या आधे से बढ़ा के 2/3 भी कर लो, और कुरान को तुम पढ़ो। लेकिन इसके दूसरे रुकू के अंदर, और दूसरा रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल, उसके अंदर ये बताया कि देखो तुम में कुछ बीमार होंगे, कुछ जिहाद पे होंगे, और कुछ तिजारत कर रहे होंगे, थक गए होंगे, तब ये कैसे तहज्जुद पढ़ेंगे? तहज्जुद पहले फर्ज थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे, मुसलमान भी पढ़ते थे। कहा कि अब से ये तहज्जुद फर्ज नहीं रहेगी, अब जितना तुमको तयस्सर, जितना तुम आसानी से पढ़ सकते हो तो पढ़ो। यानी तिजारत के वजह से एक नमाज को जो है नफिल बना दिया ताकि मुश्किल में ना आए। और ये कमाना जो है ना, ये बहुत खैर की बात बताया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे साहबा, एक साहब गए लकड़ियां तोड़े और जाकर बेच कर आ गए, फिर तोड़े। लोगों ने कहा क्या दुनिया परस्त आदमी है अल्लाह के रसूल, आप जैसा सबसे बड़ा नबी आया हुआ है और वो जाके लकड़ियां काट के बेच रहा है, पूरा बिजनेस में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो अपनी गर्ज के लिए कर रहा है तो मेरे पास बैठने से अच्छा है, वो अगर अपने माँ बाप पे खर्च करने के लिए कर रहा है तो मेरे पास बैठने से अच्छा है, अपनी बीवी बच्चों को आगे डेवलप करने के लिए कर रहा है तो मेरे पास बैठने से अच्छा है। बताइए, खर्च करने के बारे में भी है कि पहले अपने घर से शुरू करो, अपनी औलाद से शुरू करो। एक साहब आए, बोले मेरे पास 1 ही दिनार है, कहाँ खर्च करूँ? मस्जिद में कुरान दूँ, क्या करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने आप पे खर्च कर। उन्होंने कहा कि इतना भी गरीब नहीं हूँ, 1 दिनार और है मेरे पास। कहा अपने बच्चे पे खर्च कर ले, उसको दिला दे कोई खेल की चीज, अच्छी चीज, पढ़ने लिखने की चीज। कहा और है, बोले अपनी बीवी पे खर्च कर दे।
انہوں نے کہا اور ہے اپنے رشتے دار میں جو سب سے نزدیک ہے اس پہ خرچ کرنا شروع کر. یہ ہے ترتیب. ایسا نہیں کہ آئے کہ سیدھا مسجد میں دینا ہے, ادھر نہیں خرچ کرنا ہے, نہ اپنے دینا ان کو. یہ دین کی تعلیم کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اللہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے, طاقتور ہے, جو جسمانی کی طاقت ہے. اور یہ جو تعلق کو حکومت ملی اس کے لیے بھی کیا تھا کہ اس کے اندر العلم والجسم, اس کی طاقت بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ علم بھی اچھا ہونا چاہیے. تو آپ جتنا اچھا علم کریں گے تو یہ فائدہ مند ہوگا. یہ ہو گئی بنیادی بات کہ اس لیے اگر آپ نص کی طرف آئیے, قرآن کی طرف آئیے, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے سب نے کیا ہے. اور اس کے بہت سے اگزامپل آپ کو ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا آ گیا تھا 7,000 دینار کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن کیا, پھر نکال دی. محسن انسانیت میں لکھا ہوا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کل بہت بھاری کپڑے پہنا تو آپ بولیں گے کہ اسلام میں جائز ہے کیا؟ تو اسلام میں جائز ہے. اسلام میں بھاری سے بھاری کپڑا پہننا جائز ہے, فضول خرچی نہ ہو. اس کی استطاعت ہے, وہ بڑے مالدار ہے, اچھے پہن سکتا ہے تو پہن سکتا ہے. ایک نے صحابی نے پوچھا بھی کہ میں اچھے کپڑے اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہوں, اللہ کے رسول یہ تکبر میں آتا ہے؟ کہ کہا نہیں, شکر میں آتا ہے. شکر ہے یہ کہ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے تو آپ پہ سے اظہار ہونا چاہیے, آپ کے حالات پہ سے. اللہ نے خوب دیا اور اس نے فقیر کی حالت بنا کے رکھی, تو یہ بھی اچھی نہیں. جو نعمت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے پوری طریقے سے, اور وہ دوسروں کے لیے جو کوشش کرے. اب یہ تصور کو ختم کرنے کے لیے تو میرے بھی ذہن میں اسی تھا, اس لیے میں بھی چاہتا تھا والد صاحب دے دیتے جائیداد تو تمہیں بتاتا نہیں مجھے کیا کرنا ہے ایسا. لیکن پھر یہ سارے تصور سامنے آئے کہ ایسا کر کے تو ہم دین کو قائم کر سکتے ہیں. دین کی تبلیغ کرنا ہے, برادران وطن میں بھی جو پہنچانا ہے. پھر اب جماعت اسلامی ہند کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمانی اس کے لیے کوشش کیا, یہیں حیدرآباد میں رہتے تھے, ترجمان قرآن نکالتے تھے. وہ کیوں چلے گئے پنجاب کو؟ انہوں نے کہا, ایک تحریک کارواں میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں جب حیدرآباد کی اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی حکومت تھی یہاں بھارت کی, حیدرآباد اسٹیٹ, اور نظام کی حکومت. لوگ سب اس کا نام لیتے تھے, لیکن جب میں نے یہاں اسٹڈی کیا تو بیدر تک جا کے دیکھا تو معلوم کوئی بہت زیادہ علم رکھنے والا آدمی نہیں ہے. اوپری اوپری علم ہے لوگوں کے پاس, اور پرانی یادیں ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے باپ دادا نے جو بنائی وہ تو بہت غیر معمولی اور اچھی ہیں, مگر ان کا علم تو کسی کے بھی برابر نہیں. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ حیدرآباد کے لوگ ساری حکومت کے پیسوں پہ گزر بسر کر رہے ہیں, ان کی کوئی تجارت نہیں آزاد ہے, تجارت میں مسلمان نہیں ہے اور صنعت میں بھی نہیں ہے. تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حکومت اب زیادہ دن تک ٹک نہیں سکتی. تو حکومت میں رہنے کے لیے آج کون حکومت چلا رہا ہے؟ پرائم منسٹر چلا رہے ہیں, گرہ منتری, آج پورے کارپوریٹرز چلا رہے ہیں. ابھی کسانوں کے متعلق فیصلے بھی کس کے ہیں؟ امبانی اڈانی کے فیصلے ہیں کہ ان کو کمانے کو ملے, وہ فیصلہ کرنے لگا رہے ہیں. اچھا وہ نہیں دے تو ان کا سب بند ہو جائے پورا کا پورا. آج دنیا میں دیکھیے کس حکومت کدھر آ گئی. تو اگر یہ اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگا تو آپ کیسے اسلامی حکومت کا اختیار کر سکتے ہیں؟ اچھا کوئی روک ٹوک آج بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جب یہ کوشش کی اور پہلا ہم نے اجلاس رکھا پونا میں تو ہم نے 200 روپے فیس رکھی اور وہاں کھانے کی فیس 400 روپے تھی. 1 لاکھ روپے کا ہمارا نقصان ہو رہا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلی بار ہے, ہم تو تجربہ کر کے دیکھیں گے. تو اس میں ہم نے سرکاری آفیسروں کو بلایا, DIC وغیرہ. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا پروگرام نہیں دیکھا. ہم تو مسلمانوں کو بلا بلا کے تھکے, لیکن آپ نے تو اتنے اچھے لوگوں کو جمع کیا, کیسے کیا؟ پھر کتنا نقصان ہوا آپ کا, اس میں کتنا خرچ لگ رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ 1 لاکھ روپے. تو کہا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی یہ سب کام کرنے کی. تو میرے پاس اب بجٹ ختم ہوا, پوچھا اس نے فون کر کے, اور ہم کو 35,000 کا چیک دے دیا. بولے میرے پاس اتنا بجٹ بچے گا, یہ ہماری طرف سے رکھو, کیونکہ یہ کام ہمارا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے مسلمان آئے اس کے اندر میں. اب وہاں کے جو بزنس مین تھے انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا صاحب آپ دور سے آئے بھی ہیں, ہمارا اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہے, ہم ہی یہ مہمان نوازی قبول کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ یہ آٹومیٹک چلنے والی گاڑی ہے, بزنس والے خود ہی اس کو چلا سکتے ہیں, اس کو کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. سب مل کے بیٹھیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا. اب ہم نے اس کی تجربے کیے تو اب ایک صاحب ایک کرانہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے, کتنے 20 سال سے کھولے ہوئے. بھائی کیا بات ہے, ایک ہی دکان کیوں کھولے آپ؟ بس ہے اللہ کا شکر ہے. اچھا ہم نے بولے بھائی 3 کھولیے, آپ 4 کھولیے, کیسا بڑھانا چاہیے. ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دیتے تو الحمدللہ آج ان کے 3 دکانیں ہیں ایک ہی شہر میں. اب وہ بول رہے نہیں دوسرے شہر میں بھی میں شروع کرتا ہوں. تو اب امبانی اڈانی نے کیا کیا, ایسے کیا. آپ ایک بنا کے کیوں بیٹھ گئے بھائی, اتنے ہی وقت میں ہو سکتا ہے نا. ایک کورس ہے, ایک مینجمنٹ کا کورس ہے, آپ ایٹ اے ٹائم کئی بزنس دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کچھ لوگوں نے بزنس کھول رکھے ہیں, وہ سیلف امپلائمنٹ ہے.
यानी वो दुकान छोड़ के निकल ही नहीं सकते, मतलब वो दूसरों की नौकरी करने के बजाय अपनी दुकान में नौकरी करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक है बिजनेस, बिजनेस में ये होता है आदमी को वहां बैठना ही नहीं पड़ता, उसका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है, जैसा अंबानी का अडानी का चल रहा है। हमारे भी बहुत से रुस्ता हैं, हमारे अफजल बेग साहब हैं, हम क्या बैठ के हमारे बिजनेस पे नहीं बैठते कभी भी, लेकिन बिजनेस पूरा चलता है, यहाँ से बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कोर्सेस आ गए हैं, अब लोगों को नहीं मालूम है तो वही अब फुर्सत ही नहीं होता बिजनेस से ऐसा। तो बिजनेस क्या है ये बोलना चाहिए। एक चीज बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने बताई, एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये है कि जब यहाँ के मिनिस्टर जाते हैं ना बाहर बिजनेस के लिए वगैरह, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स में से लोगों को चुन लेते हैं वो कि आप चलिए हमारे साथ, कुछ आपके साथ। अच्छा, वहाँ के जो बिजनेसमैन आते हैं तो ये यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स को दावत देते हैं कि आप डील कीजिए, आपके पास कपड़ा है, उनको कपड़ा चाहिए, वो केबिन देते हैं, आप बात कर लीजिए। तो आपको ये सहूलत मिल जाती है कि पूरे मुल्कों के अंदर क्या जरूरत है, आप डायलॉग कर सकते हैं, मिनिस्ट्री आपका साथ देती है, आप हर जगह जो है वो कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें भी हैं, तो ये सब होना जरूरी है, इसके बाद ही जो है हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि रिस्क के 10 हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो है सब नौकरी में वगैरह, 9 हिस्से तिजारत में रखे गए, बरकत ही बरकत। अब देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे अंग्रेज, और उन्होंने क्या कर दिया, पूरा सोना ही लेके चले गए भारत। तो भारत के पास रहा क्या, तो भारत के पास आज जो ये झाड़ियां हैं ना, बेल के पत्ते हैं, आपके पीपल के पत्ते हैं, कई तरीके के ये हैं, इससे पूरी दवाएं बन रही हैं, इसका अर्थ निकल रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। ये रामदेव बाबा इसी में कमा रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया। अगर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने नीम का साबुन बना दिया है, आपकी मुल्तानी मिट्टी का बना दिया है, आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत सारी अच्छी चीजें। तो इतना खजाना, इतनी वनस्पति जिसको कहते हैं नबातात, ऐसी दुनिया में नहीं है। आप अरबस्तान में जाएंगे, कहाँ मुझे बताइए, शोबे अबी तालिब में भी किधर के पत्ते ढूंढ के खाना पड़ता था, यहाँ तो आप जाते के साथ हरा भरा है, दोनों तरफ हरे भरे, और हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है। एलोपैथी दवा हो क्या होम्योपैथी हो आयुर्वेदिक हो, ये है। मौलाना का तो कहना है, मौलाना मौदूदी का, कि और रिसर्च कीजिए आप, और कितनी पैथियां आती हैं नहीं मालूम। ये काम आप करेंगे तो खजाने के खजाने आपके सामने खुल जाएंगे। अब अदरक में कितने फायदे हैं, नाइसिन में कितने फायदे हैं, आप रिसर्च कीजिए, आप उसे कितनी चीजें बना सकते हैं। एक ही नहीं है बल्कि कपड़ों का है, कपड़े कितने नमूने के आप बना सकते हैं, नई नई चीजें आप डेवलप कीजिए। अब देखिए, हमारे पास चाय का एक शुरू हो गया है फैशन लातूर में और पूरे महाराष्ट्र में, कि भाई अमूल्य अमृत तुल्य या प्रेमाचा चहा, अब वो 10 रुपए में दे रहे हैं, खाली खड़े रह के चाय पीना रहता है, इतनी है उसकी फ्रेंचाइज दे रहा है वो, और लाखों रुपए कमा रहा है। हालांकि चाय का धंधा था, पहले भी चाय मिलती थी, मगर वो एक जैसी चाय को उसने बदल दिया। ऐसी बिरयानी का भी हो सकता है, कबाब का भी हो सकता है, आपका पिस्ता हो, उसके बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। आज उन्होंने कहा, पहले मैंने तकलीफ उठाई, आज मेरे पेरिस में 7 होटल हैं, अमेरिका में 3 हैं, पूरी जगह यहाँ बैठ के मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये कोई मामूली चीज नहीं, अगर आपको यहाँ पकाना आता है, आपके पास जो अच्छी अच्छी चीजें जा रही हैं, ये पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं, आप पहुंचा सकते हैं ये सारी चीजों को। तो भारत में इसके बहुत से मौके हमारे पास जो है मौजूद है। हमें क्या करना था, तो एक नेटवर्किंग का काम था। इन्होंने कहा कि भाई एक चीज बिहार में मिल रही है, एक चीज बंबई में। अब हमारे एक दोस्त उल्लासनगर में गए, जो कल्याण के बाजू में बंबई, वहां पर फलाही लोग काम कर रहे थे, तो किसके पास, सिंधियों के पास काम कर रहे थे। तो बोले, भाई सिंधियों के पास क्या काम करते हैं मौलाना लोग, तो बोले हम अरबी में बात करके देते आप। तो मालूम ये वहां सऊदी अरब है और आपकी दुबई है, यहाँ पेट्रोल पंप पे जितने ड्रेस हैं वो सब यहाँ से सिंधी सप्लाई कर रहे हैं। और उनको कौन कांटेक्ट करके दे रहे थे, हमारे मौलाना। वो बोल रहे साहब बहुत अच्छी तनख्वाह देते हैं, हमको 10,000 15,000 देते, कुछ भी नहीं, खाली बातें करके इनको अरबी में सौदा करा के देने का, और वो करोड़ों रुपए में भेज रहे। क्यों नहीं करना चाहिए हमको ये सारी चीजें। हमने इसके बहुत से तजुर्बे किए। देखिए, इसमें 2 हैं, एक है खिदमत का और एक है कमाने के सिलसिले। हमने गरीबों के लिए ये काम किया है कि भाई लोग बोलते हैं मशीन कहाँ से लाएं, कहाँ से डेवलपमेंट करें, तिजारत बोले तो पैसा होना, बिल्कुल जरूरत नहीं। असलम परवेज साहब ने हमारे बताया, घर में आप साबुन बना सकते, लिक्विड सोप बना सकते, अगरबत्ती बना सकते, काजल बना सकते, कई तरीके के केमिकल्स बना सकते, सब आपको सिखाने के लिए। मशीन ही नहीं लगती, हाथ से बनती सारी। अब गरीबों को हम जो है ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। हमने परभनी में ऐसा तजुर्बा किया, तो जो खवातीन बिल्कुल ऐसे झोपड़पट्टी में थी, आज अपने हाथ के नीचे 8 औरतों को लेकर काम कर रही, और उनको हमने गैर सूदी खर्च भी दिया।
उन्होंने कहा कि साहब ये थैलियाँ हम सी के देते थे, 2 रुपये मिलते थे, लेकिन आप 25,000 अगर हमको देंगे खर्च तो हमको एक थैली में 5 रुपये मिल सकता है। हमने दे दिया, आज हमको 5 रुपये मिल रहे हैं। आपका डेवलपमेंट हर तरीके से होता है, एक तो खिदमत का भी है और ये नेशनल और इंटरनेशनल। पहले हमने काम शुरू किया था, मैं बता रहा हूँ, ये नीचे जो गाड़े वाले हैं यहाँ से लेके आपको बड़े बड़े कंपनियों तक रहनुमाई करना है, जैसे इन्होंने कहा। फिर हमने इसके सेक्शंस बना दिए, कपड़े वालों का बिल्कुल अलग, इलेक्ट्रिक वालों का बिल्कुल अलग है मामला, सबके मैकेनिकल अलग है, तो इनको आपस में हमको जोड़ने की कोशिश करना है। फैला हुआ है दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं कि सनत और तिजारत बोले तो कोई एक शोबा है आप लेकर बैठ जाएंगे, आपको आपके शोबे का होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम ये चाहेंगे कि सब लोग ताजिर हो जाएं तो ये भी नहीं हो सकता। मौलाना मौदूदी रहमानी रिसाले दीनियात किताब लिखी, आप उसका मुताला कीजिए, तफहीमुल कुरान में भी लिखा है। और कुरान से ही बात साबित है कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाया ना, तो हर किस्म के लोगों को अल्लाह ने बनाया। किसी के अंदर अल्लाह ने इंजीनियरिंग की सलाहियत दी है, किसी के अंदर डॉक्टरी की दी है, किसी के अंदर उस्ताद बनने की दी है, किसी के अंदर आलिम बनने की दी है, किसी के अंदर शायर बनने की दी है ना। कोई एक्टिंग अच्छी करता है, कोई कहानी अच्छी लिखता है, सब ये सारे काम है दुनिया के अंदर जितने जरूरत है उसको। अब आपको ये देखना है मेरे अंदर क्या सलाहियत है। अब मैं ये बोलूं कल से हम सब बिजनेस करने का, तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। अल्लाह ने आपको क्यों बनाया? कुछ लोग सर्विस करना चाहते हैं, तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके लिए भी रखा है कि जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जॉब भी अवेलेबल है ना। आप बेकार क्यों? आपको जहां जॉब चाहिए, जैसा जॉब चाहिए, वो जॉब भी आपको मिल जाएगा। देखिए अल्लाह ने, उन्होंने कहा कि भाई बहुत सी फौज ज्यादा पैदा की अल्लाह ने, कैप्टन कम पैदा की। किसी मुल्क के अंदर भी अगर आप प्रधानमंत्री बनाना है ना, अब भारत में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप 10 से ज्यादा नाम ही नहीं बता सकते। हालांकि 135 करोड़ लोग सब हो सकते हैं ना, प्रधानमंत्री हो सकते क्या? लोग होते नहीं हो सकते, वो 10 में से कोई बन सकता है। तो कहीं भी ऐसा है, चेयरमैन बनना है, प्रेसिडेंट, अल्लाह ने उतनी सलाहियत उन्हीं लोगों के अंदर रखी, तो हमको ये तलाश करना है और जबरदस्ती से नहीं देखना है, उसका इरादा होना भी बहुत जरूरी है। हमारे मोहतरम रहमतुल्लाह शरीफ साहब को हमने पूछा था कैसी तरक्की करना, लोग कैसे तैयार करना, तो उन्होंने कहा था कि साहब जैसा मुर्गी अंडों को घोलती ना घोलना हो, तो क्या होता है, बच्चे निकल के फिर डेवलप होते हैं, ऐसा पूरी उम्मत को भी हमको डेवलप करना चाहिए। मगर मैंने ऐसी तजुर्बा किया, हमारे पास खास को बिठा के तो बच्चे नहीं निकले। बाद में वेटरनरी डॉक्टर से जाके पूछा तो बोले भाई ये क्रॉस ही नहीं किए थे। तो अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, फर्टाइल एग अलग रहते, सादे एग को बिठाएंगे ना, उसमें से कभी बच्चा नहीं निकलता। ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, उनका इरादा नहीं है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कुरान मजीद ने सूरह बकरा में 4 रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताई, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि हमने फरिश्तों से ये बात कही थी कि हम जमीन में अपना खलीफा बनाने वाले हैं। तो खलीफा क्या है? खलीफा कहते हैं प्रतिनिधि को, यानी मैं बिजनेस की जगह पे जो मैनेजर बिठा के आया वो मेरा खलीफा है, उसको सारे इख्तियार है, वो पैसे दे रहा है, पूरा डिसीजन मेरे तरफ कर रहा है, लेकिन मेरे हुक्म की पाबंदी करेगा। ऐसा अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करके ये करना है। दूसरी बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज बनाना चाहता है तो कहता है कुन फयकुन, हो जाए, यानी हो जाती है। इंसान को भी ये ताकत दी है, इरादा है उसका, वो इरादा करेगा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं आलिम बनूंगा, बन गया। वो समझेगा मैं कुरान समझ के पढ़ना चाहिए, आ गई। वो कहेगा मुझे इंग्लिश आना चाहिए, आ गई। अगर वो कहे नहीं आती, मुझे तकरीर आती नहीं, अब उसको जिंदगी भर नहीं आती। ये पूरा पढ़िए, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो फीड हो जाता है। आप ऐसी को नहीं, कोरोना मेरे को होता है, हो गया समझो, आप बोले नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को, माइंड है। आप इसकी स्टडी कीजिए, कितनी किताबें आई हैं इसकी। ये खलीफा है क्योंकि अल्लाह ने अपना एक हिस्सा पावर का हमको दिया है कि हम जो इरादा करते हैं, आपका इरादा है तो आप बन सकते हैं। अब मैं बोलूंगा संगारेड्डी में सबको बिजनेसमैन नहीं बना सकता, आप इरादा करेंगे कि ये काम मुझे करना है तो आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ढूंढिए, जबरदस्ती मत कीजिए। आप जहां भी जबरदस्ती, अपने बच्चे के साथ भी जबरदस्ती करेंगे तो घर में फितना पैदा हो जाएगा। और इसीलिए कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में भी कोई जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, बस एक रोशन बात जो है ना गुमराही से अलग करके बता दी गई है। आप इतना ही बता दी, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पे पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात है। तो ये बिजनेस के अंदर इन सारी चीजों को अगर हम मलहूज रखेंगे तो हम समझते हैं कि हम कामयाब होंगे। और आज 17 स्टेट में काम बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कितने लोग जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पहले ये था कि साहब हमको जितनी जरूरत है उतने में खाना करना था,
अब मालूम हुआ एक मसला भारत का भी है कि अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि अगर दीन पे आपको नहीं चलने दिया जा रहा है तो अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है, आप हिजरत करके चले जाओ। अब हिजरत करके कहाँ जाते हैं आप? कौन ले रहा है आपको? दूसरी जा सकते, पहले जा सकते थे, अब तुर्की भी लेता नहीं, सऊदी अरब लेता नहीं। बर्मा का हाल देखो कैसा होगा, बर्मा के बेचारे फिर रहे न लोग, बर्मी ले रहे क्या? अब क्या बताएगा? उलमा ने कहा कि दीन की वसूतों से फायदा उठाइए, तो आप यहाँ के कलेक्टर बन जाइए, यहाँ के मिनिस्टर बन जाइए, यहाँ के एसपी बन जाइए, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, इस मुल्क को खूबसूरत बनाइए। एक उसूल ये है कि बनाओ बिगाड़ का, जो दुनिया को बनाता है ना अल्लाह, हुकूमत उसी को अता करता है। उसूल है बेसिक, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं ना, अल्लाह की मदद आपके साथ आती है। इसलिए जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में थे तो वो डर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आप कुरान की तिलावत कीजिए। अच्छा, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसको कुरान नहीं आता, तबाह होने वाला है, बिल्कुल तबाह। क्योंकि कुरान मजीद ने कहा कि कुरान मजीद एक ऐसी चीज है, ये दुनिया के लोग जितना जमा कर रहे हैं उससे बहुत कीमती जो है कुरान। पूरी दुनिया एक तराजू में डालो, कुरान मजीद एक कौन सा भारी होगा? पूरी कायनात डाल दीजिए, और लोग जो है दुनिया में ऐसा घूम गए कि बिजनेस करने में ऐसे कि कुरान कुछ फुर्सत नहीं है। बताइए क्या होगा उनका हाल? सिवाय तबाही की नहीं आ सकता। आज उनको लगेगा आपको कि भरभराट है, तरक्की कर रहे हैं, तो हम दो चीजें मुसलमानों से कहते हैं, तो आप तरक्की कीजिए, दूसरा कुरान से आपका ताल्लुक होना चाहिए। जैसा तमाम अंबिया इकराम का रहा, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का रहा, हम उसी तरीके से करना चाह रहे हैं। और हमने ये देखा ये छोटे 4-5 साल में भी जो लोग भी रिफा के करीब आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे काम होते चले गए, उनके पास सर्टिफिकेट आए और उन्होंने बेहतरीन तरक्की की है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह संगारेड्डी में भी ऐसे माहौल बनेगा और लोग जो है इसके तहत जो है पूरा फायदा उठा सकेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।